ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਜ਼ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ BC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਲੀਗਲ ਏਡ BC ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਊਟਰੀਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤਰੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ। ਤਰੁਣਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਔਰ ਰਾਈਜ਼ ਵੂਮੈਨਸ ਲੀਗਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ। Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ BC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਗਲ ਏਡ BC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ BC ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਏਡ BC ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੀਗਲ ਏਡ BC ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ BC ਦੇ ਲੀਗਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਵੂਮੈਨਸ ਲੀਗਲ ਸੈਂਟਰ। ਰਾਈਜ਼ ਵੂਮੈਨਸ ਲੀਗਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਰੁਣਾ ਅਗਰਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਰੁਣਾ ਰਾਈਜ਼ ਲੀਗਲ ਵੂਮੈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤਰੁਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਵੂਮੈਨਸ ਲੀਗਲ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਰੁਣਾ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਵੂਮੈਨਸ ਲੀਗਲ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤਰੁਣਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਰੁਣਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Thank you, ਸੋ Baljinder. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਰੁਣਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਂਡ ਤਰੁਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੂਮੈਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ ਵੂਮੈਨਸ ਲੀਗਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? जी, तो किसी भी जैसे कोई औरत जिनके घर में
उनके हस्बैंड से उनकी लड़ाई हुई हो, या फैमिली वायलेंस की जो डेफिनेशन है फैमिली लॉ में, वो इंक्लूड करती है कोई भी साथ रह रहा हो। तो जैसे सास ससुर हो, कोई भी हो घर में जिसने आपको अब्यूज किया हो, तो उनके खिलाफ आप जाकर एक प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हो। लीगल एडवाइस नहीं दूंगी यहाँ पे, जी। पर हमारा जो राइज वुमेन्स लीगल सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है, हम कुछ अलग अलग हमारे प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में बताती हूँ। फिर और भी कम्युनिटी में बहुत एडवाइस अवेलेबल है, वो भी फिर बताऊंगी आपको, आपकी ऑडियंस को। जी। आप तो राइज वुमेन्स लीगल सेंटर जब ये एस्टैब्लिश हुआ था, तब हमारे पास एक स्टूडेंट क्लिनिक था। तो यूबीसी के स्टूडेंट्स आकर हमारे पास एक सेमेस्टर काम करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं एक तरह से। तो जब लोगों को हेल्प अगर चाहिए हो, वो हमारे पास पहले आए। हमारा सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली कोशिश हमेशा यही होती है कि हम लोगों को लीगल एड दिलवा सकें, क्योंकि उन्हें अगर पूरा फुल फ्लेज लॉयर मिल जाए उनकी पूरी फाइल रन करने के लिए, उससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। तो अगर उन्हें लीगल एड ना मिले तो हम उन्हें अपने स्टूडेंट क्लिनिक में ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के इशू क्या है। फिर स्टूडेंट्स वो फाइल रन करते हैं। हमारे क्लिनिक की एडवांटेज ये है कि हम अपोजिंग काउंसिल से, अगर किसी के पार्टनर ने या किसी ने लॉयर रिटेन किया हो, हम उनसे डायरेक्ट हमारे स्टूडेंट्स बात करते हैं। तो और कहीं अगर जाओ तो लॉयर एडवाइस दे देंगे, मगर खुद को आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाएंगे। तो ये हमारे क्लिनिक की बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स चले जाते हैं, चले नहीं जाते, मतलब ईमेल या फोन पे कम्युनिकेट करते हैं, कोर्ट में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स का सारा काम एक सीनियर लॉयर चेक करते हैं। मेरा वो रोल नहीं है डायरेक्टली, बट जो उनकी सुपरवाइजिंग लॉयर है, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, और वो स्टूडेंट्स का सारा काम चेक करती हैं। कोई कम्युनिकेशन उनकी जाए, सारी चेक होती है। तो एक तो क्लिनिक वो है। और अगर है कि अगर आप बीसी में नहीं, अगर आप यहाँ वैंकूवर लोअर मेनलैंड में नहीं रहते और हमारे स्टूडेंट्स आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमारा एक और प्रोग्राम है वर्चुअल लीगल क्लिनिक, जिसमें आपको हम एक वॉलंटियर लॉयर से कनेक्ट करते हैं, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से आपको कनेक्ट करते हैं कि वो लॉयर आपको फिर एडवाइस दे सकते हैं। कोई उस पर अपर लिमिट नहीं है कितने घंटे, मगर वो आपके लिए कोर्ट नहीं जाएंगे, आपको एडवाइस जरूर देंगे बिहाइंड द सीन्स। जैसे आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स किसी ने सर्व किए और आप वो रिव्यू करके जवाब देना चाहते हैं, तो वो मेन प्रोग्राम वो है मेरा प्रोग्राम, उसे कहते हैं फैमिली एडवोकेट सपोर्ट लाइन। एंड कम्युनिटी वर्कर्स जितने हैं पूरे बीसी में, या आउटरीच एडवोकेट्स हैं जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है लोगों के फॉर्म्स भरने में, जब भी वो किसी क्लाइंट का कुछ भी लीगल काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें अगर कोई चाहिए कि उनका काम रिव्यू करे, क्योंकि लॉयर्स तो है नहीं वो सारे, तो वो मुझे अपना काम भेज सकते हैं और मैं उसे रिव्यू करके उन्हें वापस देती हूँ, ताकि क्लाइंट्स जब कोर्ट में जाएं वो पेपर वर्क फाइल करने, तो कोई उसे रिव्यू कर चुका हो ऑलरेडी। ये है। और हमारे क्लिनिक में एक छोटी सी बात और है जो हम अच्छी करते हैं कि हर महीने हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स फ्री में नोटराइज कर देते हैं। तो क्योंकि नोटरी एक पेज नोटराइज कराने के लिए $35 $35 लगते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। किसी को अगर 10-20 पेजेस कराने हो, कहाँ $300 खर्च हो गए। तो हमें फोन करके आप अपना स्केड्यूल करा सकते हो, हम आपके फ्री में नोटराइज करते हैं। यह है कि कुछ लास्ट मिनट चाहिए हो तो कहीं और आपको रेफर कर देंगे, बट हमारी प्रायोरिटी जब लोग आते हैं होती है कि आपको लॉयर दिलवाएं, नहीं तो जो भी कम्युनिटी में आपके लिए बेस्ट फ्री रिसोर्स है उससे आपको कनेक्ट करेंगे हम। हमारा तो काम ये है। बिल्कुल। आपको बाकी रिसोर्सेज के बारे में बताओ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ साथ इसी मुतल्लक आपसे बात भी करूंगी। तरुण, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जब कोई लॉयर ढूंढना है, कोई भी वकील किसी भी केस में चाहिए होता है, तो सही लॉयर की पहचान क्या होनी चाहिए, स्पेशली अगर हम वुमेंस के रिगार्डिंग इन केसेस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सही वकील ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें एक बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि किसके पास। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेसी प्रॉपर चाहते हैं, तो प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो इसमें फिर आप लोग कैसे हेल्प कर सकते हो, स्पेशली जब आपके पास कोई आता है इन सर्विसेज के लिए? देखिए, अगर हम फाइल नहीं ले रहे, हम अगर किसी लॉयर को रेफर करते हैं, तो जिस लॉयर को हम रेफर करते हैं उन्हें तो हम जानते हैं,
मगर गारंटी नहीं ले सकते, सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो आपकी इशू को समझेंगे। बट अगर लोग हमें नहीं फोन कर रहे, खुद ही किसी लॉयर को मिलने जा रहे हैं, तो एक तो पहली बात, एक से ज्यादा लॉयर से मिल लीजिए, चाहे 2 से मिल लीजिए। कई लॉयर्स फ्री कंसल्टेशन भी देते हैं, कई सस्ती भी थोड़ी कंसल्टेशन देते हैं। एक एक फोन सर्विस है, लॉयर रेफरल सर्विस। उन्हें अगर फोन कीजिए तो वो आपको लॉयर को रेफर कर सकते हैं, जो आपकी पहली कंसल्टेशन $25 में कर देते हैं। तो एक से ज्यादा लॉयर से मिलिए और फिर ट्रस्ट योर गट। अपने, अगर आपको ठीक फीलिंग नहीं आती या आपको लगता है ये लॉयर मेरी बात इन्होंने पहले दिन ही नहीं सुनी, अगर पहले दिन नहीं सुनी तो बाद में तो सुनेंगे नहीं। बिल्कुल। और अगर वो मांग रहे हैं कुछ हजारों डॉलर अप फ्रंट, तो आप मना कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक ही लॉयर है, हजारों लॉयर हैं, आपको कोई ना कोई आपके लिए ठीक फिट मिल जाएगा। इसका सिर्फ कैच ये है, ये नहीं कि 10 लॉयर से मिल लीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे आप, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी एडवाइस सबकी अलग होती है। पर मिल लीजिए, और इट्स ओके टू आस्क अ लॉयर, सॉरी हिंदी में बोलती हूँ, जी। लॉयर से पूछना ये बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है आपको, कि आपको एक्सपीरियंस कितना है इन तरह के केसेस से। यू नो, इट्स अ टू वे स्ट्रीट, कि अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ, वो भी आपको सवाल पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हो। लॉयर का भी सेम बात है, रिटेन करने से पहले पूछ सकते हो। बिल्कुल। आप पैसे दे रहे हो, 100% पूछिए। जी। बट ये So, हाँ, बड़ा कंफ्यूजिंग काम है। एग्जैक्टली बिल्कुल। सो तरुणा जी, जब आप बाकी सर्विसेज की बात कर रही थी, बाकी जो सेवाएं हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी प्लीज दीजिए कि और कौन कौन जी सी इसमें कैटेगरीज होती हैं। जी। तो कम्युनिटी में डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। सपोज कीजिए अगर आप अभी रह रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ इकट्ठा रह रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ जरा पता तो चले मेरे राइट्स क्या हैं, हमारा रिश्ता काफी झगड़ा हो रहा है, काफी गड़बड़ चल रहा है, तो मैं पता तो मुझे हो कि हो क्या रहा है, कि बिल्कुल। अगर छोड़ूं तो मेरे ऑप्शंस क्या हैं। तो आप एक्सेस प्रो बोनो को फोन करके आधे घंटे किसी लॉयर से बात कर लीजिए अपने राइट्स के बारे में। अभी कुछ सीरियस हुआ नहीं है, तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि मैं क्या करूं, तो वो आपको ये भी बता देंगे कि इस रिश्ते में रहते हुए आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, अपने फाइनेंसेस के बारे में आप ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। जनरली अगर औरतें घर के फाइनेंसेस में इन्वॉल्व नहीं है, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि हो क्या रहा है। अगर किसी लॉयर से आप मिल लेंगे, तो वो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। जी। और कम्युनिटी में एडवोकेट्स भी होते हैं, आउटरीच एडवोकेट्स कह लीजिए उन्हें, या कम्युनिटी वर्कर्स कह लीजिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। जैसे वैंकूवर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैटर्ड वुमेन स्पोर्ट सर्विसेज, फिर मोज़ेक है, पूरे बीसी में काफी हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके एरिया में कौन सी हैं, तो आप हमें एट राइज वुमेन्स लीगल सेंटर फोन कीजिए, हम आपको आपके पास किसी से कनेक्ट करवा देंगे। वो भी आपको बता सकते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, यानी आपका हक क्या है, और अगर आप सेपरेट होते हैं तो आप अपने पार्टनर को क्या आपको देना पड़ेगा, जी। दोनों चीजें। बिल्कुल। हाँ। तो लॉ के हिसाब से आदमी औरत में कोई फर्क नहीं है, दोनों आप माँ बाप हैं, दोनों आप पति पत्नी हैं, तो उस हिसाब से आप लॉयर से सारी एडवाइस ले सकते हैं। एक तो ये हो गया एक्सेस प्रो बोनो का। फिर होते हैं ड्यूटी काउंसिल, वो लीगल एड के अम्ब्रेला में ही आते हैं। हाँ जी। अगर आपका कुछ कोर्ट का पेपर वर्क शुरू हो गया है, या आप शुरू करना चाहते हो, तो आप जाकर उनसे भी सवाल पूछ सकते हो। चाहे आप उनसे आधे घंटे के लिए मिलिए या 1 घंटे के लिए मिलिए, आप फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। या आपको किसी रीजन बिना लॉयर के कोर्ट जाना पड़ गया, वहां पर भी आप ड्यूटी काउंसिल से बात कर सकते हो। लिमिट्स होती हैं, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे उस जी। एप्लीकेशन पे, तो आपके लिए कोर्ट में बोल देंगे, मगर वो आपके अब लॉयर नहीं बन गए। आपकी प्राइवेसी सारे लॉयर्स रिस्पेक्ट करेंगे, इन दैट जी। कि जो आपने लॉयर को बताया है वो कॉन्फिडेंशियल है और किसी को वो बताएंगे नहीं। मगर वो आपको ड्यूटी काउंसिल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब वो बाहर निकल के जब आप कोर्ट से चले गए, तो आपका उनका रिश्ता खत्म। और भी हैं। बिल्कुल। जी जी जी। जी। तो ओके, वो हो गए एडवोकेट्स के बारे में मैंने बताया, कम्युनिटी वर्कर्स हो गए। फिर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमीची क्यूरे, वो आपको फॉर्म्स भरने में हेल्प कर सकते हैं। मैं उनके साथ पहले वॉलंटियर करती थी, तो जिन लोगों को डिवोर्स कराना होता था, वो अपना डिवोर्स का पेपर वर्क लाते थे, हम भरते थे, उन्हें
बताते थे कि अगला स्टेप क्या है, आप अपने पार्टनर को सर्व कीजिए या जो मर्जी अगला स्टेप हो, उन्हें समझाते थे, फिर वो एक स्टेप करके वापस आते थे, हम बाकी फॉर्म भरते थे। तो बहुत हैंड होल्डिंग हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि किसे कितनी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपको कितनी मदद की ज़रूरत है। अगर आप इंग्लिश नहीं भी बोलते, तो भी आपको इन सर्विसेज को अगर आप पहले बताएं कि मैं इंग्लिश नहीं बोलती, तो वो आपको इंटरप्रेटर ला देंगे जो आपकी लैंग्वेज बोले। ओके। या जिन क्लिनिक्स में मैं वॉलंटियर करती थी या जिन लाइंस पे करती थी, मैं जनरली इंडियन क्लाइंट्स के साथ ही काम करती थी, हाँ जी। क्योंकि और अभी भी काफ़ी इंडियन क्लाइंट्स हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बोलती हूँ, ईज़ी हो जाता है, इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल। ना उन्हें ना मुझे। um, आप अपने राइट्स के बारे में ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। जैसे प्रोविंशियल कोर्ट रूल्स, अभी बलजिंदर जी कह रहे थे कि सारे रूल्स चेंज हो गए हैं, पिछले साल चेंज हुए थे, डिवोर्स एक्ट भी चेंज हो गया। ओके। तो ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज हैं। क्लिक लॉ बीसी है और माई लॉ बीसी है। अगर आप उस पर जाइए, अपनी प्रॉब्लम एंटर कीजिए, there's a सेल्फ हेल्प टूल, उसमें जाकर अगर आप लिखें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो आपको धीरे धीरे गाइड करते हैं और फिर एंड में जो भी आपके काम के रिसोर्सेज हैं वो आ जाते हैं। um, और क्लिक लॉ में भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और वो क्लिक लॉ की जो वो पब्लिश करते हैं अपने आर्टिकल्स, वो पंजाबी में भी करते हैं। ओके। हिंदी में तो नहीं करते, जी, जी, मगर जी। पंजाबी में भी पंजाबी करते में हैं, तो करते हैं। जिन्हें आती है पंजाबी पढ़नी, उनके लिए भी ठीक हो जाता है। जी, um, जी, आई कैन जी। कीप टॉकिंग। बिल्कुल। तरुणा, जैसे अगर आपने सारी सर्विसेज बताई, जिनमें से कुछ सर्विसेज के बारे में आपने साथ-साथ ये भी बताया कि वो बिल्कुल फ्री हैं। अब बहुत सारी कैटेगरीज़ ऐसी भी हैं, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें आई थिंक पे करना पड़ता है। कम्युनिटी जी, में अगर कोई वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा, तो फिर उसमें क्या हेल्प मिल सकती है, अगर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा खर्चा तो? हाँ, लॉयर्स अगर आप प्राइवेटली रिटेन करोगे तो आपको पे करना पड़ता है। कई लॉयर्स 1 घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं, कई पूरे उसके फीस देते हैं। तो और अगर ये नहीं अफोर्ड कर सकते, सबसे पहला स्टेप, बार बार यही कहूंगी लोगों को कि लीगल एड के लिए अप्लाई कीजिए। कई बारी लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं लीगल एड ने हमें रिजेक्ट कर दिया, मगर हुआ क्या होता है, लीगल एड ने कहा होता है कि हमें ये वाले डॉक्यूमेंट्स ला कर दीजिए। लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं और फिर लीगल एड को जवाब नहीं देते हैं, फाइल खुली रह जाती है। जी। तो जो लीगल एड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे, आप उनको दीजिए बकायदा, और फिर देखिए अगर आपकी एप्लीकेशंस नहीं सक्सीड होती, नहीं भी अगर वो होती सक्सीड, तो आप उसे अपील कर सकते हैं। तो आइए राइज वुमेन सेंटर, हम आपको अपील करने में हेल्प कर सकते हैं। अपील का लेटर एक ही पेज का होता है, बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए कि उन्होंने कोई इशू गलत समझ लिया जो वर्कर थे, या कुछ गलत असेसमेंट हो गई, फिर भी लोग क्वालिफाई कर सकते हैं लीगल एड के लिए, वो कीजिए। और फिर एक और लाइन है, फैमिली लॉ लाइन, जिसमें 6 घंटे की आपको एडवाइस फ्री में मिल सकती है, जी। वो भी ट्राई कीजिए। देखिए अगर इमरजेंसी नहीं है ना एकदम, तो ये पहले फ्री रिसोर्सेज यूज करके, कम्युनिटी वर्कर्स को यूज करके, अपना पेपर वर्क भर के फिर जाइए लॉयर के पास, ताकि आपके 6-7 आवर्स वाइजली यूज हो सकें। शायद आपको एंड में इवेंचुअली लॉयर रिटेन करना पड़े, जी। और अगर प्रॉपर्टी खूब सारी है तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लॉयर्स के पास जाकर बार बार अपनी बात समझानी पड़ती है। बिल्कुल। तो अगर आपके पास है पैसे, रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर्टी में से आप थोड़ा सा निकाल के कर सकते हैं लॉयर रिटेन, तो जरूर कीजिए। बट नहीं कर सकते तो कोशिश तो कीजिए अपनी तरफ से ये कम्युनिटी रिसोर्सेज यूज करने की। और अगर आपका कोई कम्युनिटी वर्कर है, जैसे वैंकूवर लोअर मेनलैंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज हैं, अगर वहां पर कोई वर्कर है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आप राइज अगर आइए, फोन कीजिए, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज नेविगेट करने के लिए। जी। इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मैं नोट्स बना रही थी, मेरे नोट्स ही इतने सारे 20 पेजेस के हैं। जी। कि बिल्कुल। इतने सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, तो शायद लोगों को पता ही नहीं है कितनी फ्री हेल्प अवेलेबल है। तो ये नहीं है कि आपको कोई लॉयर की जरूरत हो तो आपको पहले दिन किसी को हजारों डॉलर देकर रिटेन करना होगा। बिल्कुल। और अगर आप कहीं जाएं और कोई हजारों मांगे, तो कोई और किसी और को कंसल्ट करके देखिए, बिल्कुल। बिल्कुल। काफी उससे। जी, तरुणा, या, आपने ये चीज़ बताई कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि कितनी फ्री जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल है, राइट?
हाँ जी। ये कंफ्यूजन जो है वो आई कहाँ से, क्यों है लोगों में ऐसी कंफ्यूजन? लीगल एड बीसी बड़े पुराने टाइम से काम कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, हर तरह की कैटेगरीज है, तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों रह जाती है? क्यों सही जो तस्वीर है या सही जानकारी है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही? कहाँ पे आई डोंट प्रॉब्लम नो, आ रही आई है? थिंक कई कई जगहों पे ना, जैसे हमारे काफी सारे आपके दर्शक भी और हमारी कम्युनिटी भी सारे इंडिया से आए हैं। इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं है, जब बिल्कुल, हाँ। जहां तक मुझे पता है हाँ, कि प्रोसेस ऐसे बिल्कुल कहाँ। अलग है, हाँ। हाँ, बिल्कुल जी। अलग है। तो लोग सोच ही नहीं सकते कि इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे अगर किसी औरत को उनके हस्बैंड तंग कर रहे हैं या सास-ससुर तंग कर रहे हैं और आप अपने घर को छोड़ के जाना चाहते हैं। ट्रांज़िशन हाउसेज़ हैं, उन्हें ट्रांज़िशन हाउस कहते हैं। एक घर है, जहाँ आप जाकर 1 महीने के लिए बिना रेंट के, बिना खाने-पीने के पैसे दे के रह सकते हैं। वो आपको लॉयर से भी कनेक्ट कराते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज हाउसिंग भी होती है, जहाँ आप जाकर रह सकते हो। वो आपको जॉब काउंसलर से भी हेल्प कराते हैं, कनेक्ट कराते हैं। अब अवेलेबिलिटी हर चीज़ की लिमिटेड है। हाँ जी। आपको पहले फ़ोन करके ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। मगर इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं, लोग लोग को सोच ही नहीं सकते कि हैं भी, तो वो कभी पता करने की कोशिश ही नहीं करते। जब बिल्कुल। उन्हें और जब या लॉयर्स से फिर मिलते हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी लॉयर्स को पता ही नहीं होता कि ये जी। सर्विसेज़ भी अवेलेबल हैं, ओके, क्योंकि वो तो सो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में। ओके, सो तरुणा, इसमें एक बात ये तो नहीं है कि जैसे आप बता रहे हो कि इंडिया से हम लोग आए, हमें सर्विसेज का पता नहीं? हो सकता है ये चीज़ों के केसेस कम हैं, लड़ाइयाँ झगड़े कम हो चुके हैं तो केसेस आ ही नहीं रहे। ऐसा काश आपके मुँह में घी शक्कर ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो। हाँ। जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, प्राइवेट प्रैक्टिस में थी, सारा टाइम फ़ोन आते थे। आई थिंक हमारी बाकी कम्युनिटीज़ में भी होंगी ये प्रॉब्लम। जी। हमारी कम्युनिटी में बहुत है ये बात कि औरत को उनके घर में उनका हक नहीं मिलता, उनकी जो उनको दर्जा मिलना चाहिए, हाँ जी, रिस्पेक्ट बिल्कुल। वाला, वो या नहीं मिलता। और शादियाँ भी लोग करा देते हैं बेटियों की बिना उनके मर्ज़ी के। तो जिन्हें लग रहा है कि वो फँस चुके हैं, आप कम से कम फ़ोन करके बात तो कीजिए। किसी से मिल के बात तो कीजिए। शायद कोई आपके निकलने का, कोई आपकी अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका हो। अम, और लोगों को खुद भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। मैं नहीं कह रही कि आप किसी लॉयर को मिलोगे तो वो जी आपकी 1 दिन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। थोड़ा अपहिल बैटल है, आपको भी करना पड़ेगा। इमिग्रेशन कंसर्न्स हो सकते हैं, जो मर्ज़ी। मगर ऐसा कुछ नहीं है जो लोग एक तो लॉयर्स मिलकर सॉल्व ना कर सकें। जी। और मैं अपनी प्रमोशन करने नहीं आई, मगर हमारी बिल्कुल। ऑर्गेनाइज़ेशन को ज़रूर फ़ोन कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप शुरू कहाँ से करें। जो बिल्कुल। हमारी इंटेक वर्कर हैं एंड्रिया, हाँ, हाँ, हाँ। हिंदी तो नहीं बोलती, जी, जी। मगर अगेन हम किसी इंटरप्रेटर को बहुत ईज़िली अरेंज कर सकते हाँ हैं और जी। हमारी कॉस्ट पे, किसी को हम क्लाइंट्स को कॉस्ट नहीं पास ऑन करते, हम पे करेंगे। और वो ये काम 10-15 साल से कर रही हैं और उन्हें सारे कम्युनिटी रिसोर्सेज का पता है। और काश भगवान करे कि आपकी बात ठीक निकले कि हमारी कम्युनिटी बिल्कुल। में ये लड़ाई झगड़े खत्म ही हो जाए। जी, बिल्कुल। तनु ना, एक रास्ता होता है कि जब भी किसी लॉयर के पास किसी भी केस को लेके जाते हैं, तो ये चाहे वुमेन्स के रिगार्डिंग ही हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी केस होता है तो एक समा दिया जाता है कि ये टाइम है, इसमें सुलह सफाई का भी एक मौका दिया जाता है। तो उसके हाँ बारे जी। में वो प्रोसेस भी है, थोड़ा उसके बारे में भी जी। बताइए। जी, तो अगर आप नहीं चाहते अलग होना, आप चाहते हो हम मीडिएट करें, हम ये प्रोसेस चाहे अलग होएँ, बड़े एमिकेबली, बड़े दोस्ती से, प्यार से, ढंग से निभा लें। उसके लिए आप वकील के पास भी जा सकते हैं, मगर उसके लिए भी फ्री सर्विस है। एक्सेस प्रो बोनो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो आपको मीडिएटर भी फ्री में देंगे। आप जाकर बात कीजिए, जो मीडिएटर से आप डिसाइड करेंगे, आप लिख लीजिए एग्रीमेंट में, मीडिएटर लिख के देंगे। वो फिर आप अपने-अपने लॉयर के पास ले जाकर, वो लॉयर भी आपको फ्री में मिलेंगे। वो आपको उस एग्रीमेंट के बारे में एडवाइस दे सकते हैं, ताकि आप उसको इन्फॉर्म्ड तरीके से आपको पता लग जाए आपके हक क्या हैं, फिर आप उसे साइन कीजिए। ये भी सर्विस पूरी फ्री है। जी। आप एक सर्टेन इनकम के नीचे लोग हाँ अगर जी। अगर आप लाख 1.5 लाख कमाते हैं, तो आपके लिए नहीं है फ्री। बट अगर आपकी इनकम थोड़ी कम है, दोनों में से एक पार्टनर की भी इनकम कम है, तो भी ये आपको सर्विस मीडिएटर भी फ्री मिलेंगे, लॉयर भी फ्री मिलेंगे, कुछ घंटों के लिए, ओके। कि आप अपना झगड़ा रिज़ॉल्व कर सकें बिना कोर्ट जाए। कोर्ट जाने में तो बात खिंचती ही है ना, कुछ बिल्कुल। अब
कोविड के बीच में तो स्पेशली अगले साल की डेट मिलेगी, तो इसलिए लोग चाहें तो कर सकते हैं ये भी। जी। तरुण, आपने देखा कि प्रोविंशियल फैमिली कोर्ट रूल्स जो हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस जो आए हैं। सो आपकी तरफ से जो सपोर्ट है, स्पेशली राइज वुमेन सेंटर टू सपोर्ट, उसकी बात करें तो वो विक्टिम्स की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? जी। हम लोग, हमारे जो लॉयर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, हमें तो इन रूल्स के बारे में पता है। तो अगर आप फ़ोन करें और हम आपको अपने स्टूडेंट क्लिनिक में नहीं लेते, तो हम आपको एडवोकेट्स के लिए को रेफ़र कर सकते हैं, जो आपको पूरे कोर्ट रूल्स के टुवर्ड्स गाइड कर सकते हैं। जी। फ्री लीगल वर्कशॉप्स भी होती हैं कम्युनिटी में। हम आपको उनके बारे में भी बता सकते हैं कि अगर आप खुद रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो आपको कोर्ट रूल्स आप ये नेविगेट कैसे करें, बता सकते हैं। और लीगल एड ने खुद भी काफ़ी अपनी वेबसाइट पे माई लॉ बीसी या क्लिक लॉ पे इस रूल्स के बारे में लिखा है। तो और ये रूल सच में बड़े कंफ्यूजिंग है, अलग-अलग कोर्ट हाउसेस में बिल्कुल, अलग-अलग बिल्कुल। चीज़ें होती हैं। और लोगों को सारे कोर्ट हाउसेस का तो पता करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जहाँ उनका केस जा रहा है, आप अगर हमें फ़ोन करें तो हम आपको राइट रिसोर्स की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। सरी में जैसे एक ऑर्गेनाइज़ेशन है सोर्सेस, उनके पास भी 3 एडवोकेट्स हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं कि कहाँ आपको जाना चाहिए। और ये जितने एडवोकेट्स हैं, इनके एक सुपरवाइजिंग लॉयर भी होते हैं और मैं भी हूँ। तो उनका काम कोई रिव्यू कर रहा है, ये नहीं है कि वो आपको जो मर्ज़ी बोलते रहेंगे, जी उनके ऊपर कोई सुपरविज़न नहीं है। चाहे वो वकील नहीं है, उनका काम कोई चेक कर रहा है। जी। तरुणा, एक चीज़ होती है कि जब भी कोई इस तरह के मामले आते हैं तो स्पेशली वकील का मतलब ही ये होता है कि हमें कोर्ट रूल नहीं समझ आ रहे, कोर्ट की जी। लैंग्वेज, जैसे अभी आपने भी बताया, हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन भी चेक करते हैं, आम लोग अगर चेक करेंगे तो समझ नहीं आती कि क्या है, क्या वो साइट भी कह रही है, या उसीलिए शायद वकील चुना जाता है कि वकील हमें वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एडवोकेट हम कर लेते हैं, वकील भी कर लेते हैं, तो सिर्फ वो भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते। कई बार वो वकील भी हमारे केस को उस तरह से नहीं ले पाता, और आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचनी चाहिए वो भी नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में भी लोगों को बड़ी दिक्कतें सामने आई हैं। पिछले काफ़ी समय से हम लोग इस तरह की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लोगों को आ रही हैं लॉयर की तरफ से, वो काफ़ी सुन रहे हैं। तो इसका कोई हल है? इसके लिए कोई रूल होते हैं? ये है, देखिए, अगर आपको लीगल एड का लॉयर मिला है तो आप लीगल एड को कहिए ये लॉयर मेरी सुनते नहीं हैं, और डॉक्यूमेंट कीजिए ना आप हर बात पे, और बिल्कुल। फिर आप लॉयर बदल सकते हैं। और वैसे भी अगर आप कोई लॉयर लें, लोग सोचते हैं अब तो ये लॉयर कर लिया, कोई बात नहीं, इसने ये गलत किया, बदल लीजिए, आप पैसे दे रहे हैं। और अगर ये लोगों को ये भी लगता है कई बारी मेरी फाइल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं लॉयर बदलूं तो ये दूसरे लॉयर मेरी बात नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं है, दूसरे लॉयर समझ जाएंगे। अ, पहले तो 1-2 लॉयर से मिल के जो आपको ठीक लगे उससे कीजिए। जी। और जो रिटेनर देते हैं लॉयर पहले, जिसमें लिखा होता है वो किस किस चीज़ के लिए बिल कर रहे हैं, लॉयर्स फ़ोन कॉल के लिए बिल करते हैं, ईमेल के लिए बिल करते हैं, पढ़ के समझिए कि वो कर क्या रहे हैं। जी। फ्रेंकली किसी अगर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन करके आप उनके कॉन्टैक्ट्स का रेफरल लें, या अपनी किसी फ्रेंड से बात करके उनके वर्ड ऑफ माउथ का रेफरल लेके किसी लॉयर के पास जाएं जो किसी और ने ट्राई एंड टेस्ट किया हुआ है, जी। उससे बेहतर बात कोई नहीं है। ऐसे ही किसी को उठा के फ़ोन करेंगे, अगर आपको कहीं ना लॉयर शुरू में बड़े कम पैसे लेते हैं, लोगों को लगता है ये ठीक है, वैसे मत डिसाइड कीजिए। इसलिए डिसाइड कीजिए कि आपको मिल के लगे कि बिल्कुल। इसे आई मेरी बात समझ, और ये कम्युनिकेट करेंगे ठीक से। जी। बट आपकी बात ठीक है कैसे पता चले? बट लॉयर चेंज करने में झिझकना नहीं चाहिए। और अगर लॉयर ने बहुत गलत कुछ किया है, तो लॉ सोसाइटी जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, आप उसमें कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उनका काम ही यही है कि लॉयर्स के खिलाफ पब्लिक की कंप्लेंट सुनना, और वो हर एक कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये नहीं है कि आपकी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, उन्हें टाइम थोड़ा ज़रूर लग जाता है, क्योंकि वो एक-एक कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करते बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल। कुछ 2-3 महीने उन्हें कई बारी लग जाते हैं, बट 100% कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं वो लोग। तो ज़रूर कंप्लेंट फाइल बिल कीजिए। बिल्कुल। 2022 में 2022 अब चढ़ा है, तो कई तरह की सर्विसेज के बारे में तरुणा चेंजेस देखने को मिले हैं। तो जो वुमेन्स रिगार्डिंग जो केसेस हैं, इनमें भी कोई चेंजेस, लाइक अभी ये बोला जा रहा था कि ऑनलाइन सारी जो हैं वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ऑनलाइन ही कोर्ट के सारे काम चल रहे हैं। तो अभी आगे क्या इनमें देखने को मिल सकता है? लोगों को कोई आम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इस सर्विसेज में आ सकती? आई मीन सारा कुछ कोविड की वजह से डिले हो गया है, तो दिक्कत परेशानी तो सबको यही आ रही है, सबको आ रही है कि अगर आप सेपरेट हुए हैं, आप चाहते हैं आपका पेरेंटिंग टाइम रिजॉल्व हो कि बच्चे किसके पास कितनी देर रहें, जी। कोर्ट डेट्स काफ़ी देर में मिल रही हैं।
ऑनलाइन भी पीछे दिसंबर तक कोर्ट्स खुल गए थे, फिर लोग वापस जा रहे थे इन पर्सन काम के लिए। जी ओमिक्रॉन ने सब कुछ फिर ऑनलाइन कर दिया बिल्कुल और बिल्कुल। अब फिर कुछ दिन से कोर्ट खुल गए हैं। जी तो आगे सच्ची किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, मगर ये ज़रूर है कि अगर कोर्ट डेट है तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे इन पर्सन, आपकी सुनाई हो जाएगी। और अगर आप अपीयर नहीं कर सकते, जैसे आपको लग रहा है इन पर्सन हो, अब उन्होंने कह दिया कंप्यूटर पे है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास फ़ोन नहीं है, तो किसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन कीजिए। कईयों के पास एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स होते हैं जो वो आपको यूज़ करने दे सकते हैं। कई आपको इन पर्सन ऑफिस में मिल सकते हैं, कईयों के आप प्रिंटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो है तो मुश्किल काम नेविगेट करना हर चीज़, मगर हिम्मत हारने से तो अब काम ठीक होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ़ोन कीजिए, कोई ना कोई आपको ज़रूर सपोर्ट मिल जाएगा जो आपकी टेक्निकल इश्यूज़ में भी हेल्प कर सके। जी सो आखिर में तरुणा आप क्या कहना चाहेंगी? और जिस तरह से हर सर्विसेज के बारे में हम जान ही रहे हैं, लीगल एड बीसी की तरफ से भी जिस तरीके की सारी सहूलतें हैं जितनी भी है वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और उसके बारे में आखिर में क्या कहना चाहेंगे? लोग अब जब इतने सारे सवाल हैं, आप खुद बता रहे हो कि लोगों को सर्विसेज के बारे में पता नहीं है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, जी। तो क्या करना चाहिए उनको? क्या आखिर में कहना चाहेंगे? जी, आप लीगल एड फ़ोन करके लॉयर के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। आप राइज़ को फ़ोन कीजिए या आपके आसपास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें फ़ोन कीजिए। अगर वो कहें हमारी वेट लिस्ट है, हमारे एडवोकेट्स नहीं हैं, आप किसी और को फ़ोन कीजिए। एक बारी ना सुनकर आप सहम कर घर बैठ गए तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जी 2-4 जगह फ़ोन कीजिए, कोई ना कोई ज़रूर अवेलेबल होगा, और हमें फ़ोन कीजिए। राइज़ वुमेन्स लीगल सेंटर को फ़ोन कीजिए। हम करते हैं सेल्फ आइडेंटिफाइड वुमेन के साथ काम। तो अगर आप खुद को औरत समझती हैं, ज़रूर फ़ोन कीजिए। हम आपको आपकी लॉयर की मीटिंग के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं कि कई बारी 100 सवाल होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, मैं जी पूछूंगी कैसे। बिल्कुल। हम उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। हम कम्युनिटी वर्कर्स से भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं, और कई बारी कई कम्युनिटी वर्कर्स आपके साथ लॉयर के ऑफिस जा भी सकते हैं। तो ये बात ज़रूरी है। और लोगों को सेकंड ओपिनियन लेना, एक लॉयर है, उसके भरोसा नहीं है वो क्या कह रहे हैं, एक और ओपिनियन लेने में कोई गलत बात नहीं है। ओके लॉयर को छोड़ के दूसरा लॉयर करने में गलत बात नहीं है। या यही कहना जी चाहूँगी। थैंक यू सो मच तरुणा, आप जुड़े हमारे साथ में, और ये बहुत ही अहम मुद्दा है जो कई घरों की कन्फ्यूज़न भी बना हुआ है। जब सर्विसेज लेनी होती है तो कुछ भी समझने में नहीं आता, कभी पैसा जहन में रहता है कि खर्चा ज़्यादा आएगा, कभी वकील करने में दिक्कत हो रही, कभी सही वकील नहीं मिल रहा, तो कभी वकील का खर्चा भी पूरा करना है। ये सारी कन्फ्यूज़न वाकई रहती हैं, और कभी कभी तो सर्विसेज जो होती हैं उनके बारे में नहीं पता लगता कि ये सर्विसेज हमारे लिए ठीक भी है या नहीं। सो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। थैंक यू सो मच, आपने इस पे बहुत गहराई से जो है बातें की, बहुत सारी जो जानकारी है हमारे साथ जो शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने ये बहुत मुझसे अच्छे सवाल पूछे। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं लोगों को बता सकूं क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। थैंक यू शेरी। थैंक यू तरुणा। सो फैमिली लॉ की गल ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲॉज ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਗਲ ਏਡ BC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲॉस ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ BC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੀਗਲ ਏਡ BC ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਫ ਰਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।